کیا عمران خان سے کرپشن کیسز سے متعلق پوچھنا ہراسانی ہے؟ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان نے ابھی تک توشہ خانہ کے تحائف کا جواب نہیں دیا۔ اراضی اسکینڈل میں اقرار نامہ اور رجسٹری سب موجود ہے۔ 5 ارب روپے کا غبن کیا گیا۔ عمران خان نے 458 کنال اراضی اہلیہ اور 200 سے زائد کنال فرا کے نام پر لی۔ اور ہماری معیشت کو 2 مہینے کے اندر انہوں نے اوپر سے نیچے گرائی۔ جو مشکلوں سے پچھلے 2 سال میں ہمارے جو پاکستان کا اکنامک سروے ہے وہ بھی کہتا ہے کہ 17 سال کے بعد پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت نے ترقی کی۔ موجودہ حکمرانوں نے مہنگائی آسمان پر اور معیشت زمین پر گرا دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چیچا وطنی میں جلسے سے خطاب، کہا وہ دور میں بجلی غائب کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، یہ جو چاہے کر لیں، ان کو شکست دے کر رہیں گے۔ ایک بڑی واضح بات کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے، فائنانس بل کا حصہ ہے، یہ ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، یہ عوام کو ریلیف ہے، جس ریلیف کے خلاف اس 5 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے خلاف یہ اپیل ہے جو پنجاب میں جن کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا اسی وقت ہدایت جاری کرتے کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ سکیم دی جائے، لیکن نہیں، مقصد عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا۔ مریم اورنگزیب کی عمران خان پر تنقید، کہا خط بشرا بی بی کی ہدایت پر نکالا گیا۔ بتائیں قوم کو کس طرح 4 سال تک سیاسی انتقام لیتے رہے، اپنا سکینڈل سامنے آتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ پاور پلانٹ آپ کی نالائکی کی وجہ سے بند ہے۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کا کیس، عمران خان کی عبوری ضمانت میں 18 جولائی تک توسیع، عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور، عدالت کا 5-5 ہزار روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ سرکاری زمین کے جھوٹے کاغذات بنانے کا الزام، حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف سماعت پر فیصلہ محفوظ، حلیم عادل شیخ کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، راہداری ریمانڈ لے کر سندھ منتقل کیا جائے گا۔ کراچی میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، کورنگی، ملیر، بلدیہ اتحاد ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ ملیر کھوکھرا پارک میں گھر کی دیوار گرنے سے 14 سالہ امان جاں بحق، سکھر میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، گلگت بلتستان میں بھی بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ بلوچستان میں مانسون کی بارشیں، مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق، حکومت نے کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ خزدار میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، پشین، سبی اور ڈیرہ بگٹی میں بھی بادل جم کر برسے۔ مانسون بارشوں سے اب تک 77 اموات ہوئی ہیں۔ شیری رحمان کہتی ہیں بارشوں سے بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں پاکستان کا 6واں نمبر ہے۔ رواں ہفتے شدید بارشوں کا الرٹ جاری ہوا، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔
कोरोना वायरस से एक और शख्स दम तोड़ गया। मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में 17,150 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा शहरों में एबटाबाद सरे फहरिस्त है। दौरा श्रीलंका कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कोलंबो रवाना। पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल है। और माहीगीर ने इंतहाई नायाब नीला लॉबस्टर पकड़ लिया। नीले लॉबस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लॉरेंस जॉन ग्लार्सन ने लिखा कि यह नीले रंग का लॉबस्टर कल पोर्टलैंड के साहिल से पकड़ा गया था। पोस्ट ने इंटरनेट सारिफीन को हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिडू न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद फिर से खुशामदीद। इमरान खान को एक सवाल का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हमें हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने कहा दीवार से लगाना बंद ना किया गया तो सब कुछ कौम को बताऊंगा। क्या इन्हें कोट लखपत या अडयाला में बंद कर दिया गया? क्या जेल में इनके बैरक का पंखा बंद कर दिया गया या अद्वियात बंद कर दी गई? इमरान खान ये सब कुछ अपने मुखालिफिन के साथ 3 साल तक करते रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अराजी स्कैंडल में इकरारनामा और रजिस्ट्री सब मौजूद है। अराजी स्कैंडल में 5 अरब रुपए का गबन किया गया। इमरान खान ने 458 कनाल अराजी अहलिया के नाम पर ली, 200 से जायद कनाल फरा के नाम पर ली। पंजाब से इकट्ठी होने वाली रकम वज़ीर आला हाउस जाती थी या बनी गाला? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आप 3.5-4 साल जो है अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है ये सारा कुछ करते रहे हैं, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ? मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई आसमान पर और मईशत जमीन पर गिरा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीचा वतनी में जलसे से खिताब। कहा बिजली गायब है, किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ये जो चाहें कर लें, इनको शिकस्त देकर रहेंगे। एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और इन्होंने आते साथ ही महंगाई आसमानों पे पहुंचा दी। पेट्रोल महंगा, फजलुर रहमान महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, और सुनो महंगाई आसमानों पे, और हमारी मैशत को 2 महीने के अंदर
इन्होंने ऊपर से नीचे गिराई, जो मुश्किलों से पिछले 2 साल में हमारे जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है वो भी कहता है कि 17 साल के बाद कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें चोरी की दास्तानें ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तकर्रुर तबादले में पैसे लेकर किए जाते थे। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घरों का झूठा वादा किया। साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम को रिलीफ नहीं दिया। डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, फाइनेंस बिल का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये अवाम को रिलीफ है। जिस रिलीफ के खिलाफ उस 5 करोड़ 50 लाख लोगों के खिलाफ ये अपील है जो पंजाब में जिनको ये रिलीफ दिया गया है। आपको चाहिए था उसी वक्त हदायत जारी करते कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये स्कीम दी जाए, लेकिन नहीं, मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं है। ये ज़रूरी बात थी जो आपको बतानी थी। इसकी तमाम तफसील भी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। इसकी तमाम तफसील फाइनेंस बिल का हिस्सा है और ये तमाम मुख्तस शुदा फंड उस फाइनेंस बजट का भी हिस्सा है जो तमाम पंजाब गवर्नमेंट अपने अखराजात से अगस्त के अंदर अदायगी करेगी इस रिलीफ के अगेंस्ट। ये 100 बिलियन का रिलीफ का सब्सिडी का पैकेज है जो रिलीफ दिया जा रहा है 100 यूनिट पे करने का। ये ज्यादती अवाम के साथ ना करें, ये अवाम के खिलाफ, उनके रिलीफ के खिलाफ ये अपील ना करें। ये आपकी जो नलायकी है, चोरी है, डाका है, उसकी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसको हर रोज सही सिमत की तरफ हम लेकर जा रहे हैं उस मईशत। ये इनकी असलियत है, ये इनका माइंड सेट है, ये इनका रवैया है और ये इनकी पॉलिसी थी 4 साल। इलेक्शन कमीशन में ये अपील तो लेके जाते हैं कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों को महरूम कर दें, 87 लाख लोगों खानदानों को महरूम कर दें इस रिलीफ से। उधर ही अपील लेके जाते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला करें, जहां आपकी चोरी, आपका डाका जो है, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपकी, वो साबित कर दी है स्टेट बैंक ने। वो पहला भी पर्चा लेकर जाते ना, वो अपील भी लेकर जाते, लेकिन क्योंकि मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ अवाम दुश्मनी है, मकसद सिर्फ अवाम का खून निचोड़ना है। लेकिन अब वो दिन चले गए जब आपके पास ये इख्तियार था, जब आपके पास वो इक़्तिदार था जिसको इस्तेमाल करके आपने अवाम का खून चूसा। और पंजाब की हुकूमत के साथ ये बदला आप ले रहे हैं क्योंकि पंजाब की, पाकिस्तान की वफाक की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे साद रफीक ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर गिलगित कश्मीर कमर ज़मान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, सियासत दाव पर लगा दी, लेकिन रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। यकीन है पंजाब के अवाम ज़िमनी इलेक्शन में एतमाद का वोट देंगे। में गिरने के करीब थे तो उसका बोझ अपने सर पे उठाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस सिलसिले में मुझे 2 मारूज़ात करनी है। एक तो मैंने परसों ये बात कही थी और आज उसको फिर दोहराता हूँ कि भागने का ऑप्शन सबसे आसान था, कि बजाय इसके नो कॉन्फिडेंस के बाद कंटिन्यू करते हम आम इंतखाबात में चले जाते। तमाम जमातें जो अपोजिशन की हैं, वो PDM था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या ANP, तो ये सब कहते थे कि तुम जान छोड़ो और मुल्क में आम इंतखाबात करवाओ। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम नो कॉन्फिडेंस के रास्ते पे गए और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया? ये एक सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए और हमें भी तकरार से इसका जवाब देना चाहिए। एक बुनियादी वजह यह है कि जब नो कॉन्फिडेंस हो गई, जहाँ तक मेरी जमात का ताल्लुक है, और जब हम लंदन गए तो ज़ाहिर है हम बड़ी हंगामी हालत में लंदन गए थे, तो वहाँ मशवरे हुए अपनी क़यादत के साथ और तकरीबन हमारा ज़हन बन रहा था कि हम इंतखाबात में चले जाएं क्योंकि ये तो हमारी डिमांड थी। लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें सामने आई जिनमें से मेजर रुकावट ये थी कि अगर 90 दिन के लिए केयर टेकर आ गए तो IMF और आलमी मालियाती इदारों को इंगेज कौन करेगा?
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। एक ही मुकाम पर इजलास के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली का एक ही इजलास, एक ही तारीख, एक ही वक्त होगा, मगर 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर परवेज इलाही ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया। डिप्टी स्पीकर ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्त मजारी ने भी 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया है। इससे कबल ऐवान इकबाल और पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग इजलास होते रहे हैं, लेकिन अब तो एक जगह पर असम्बली इजलास के नोटिफिकेशन अलग अलग जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तहरीक इंसाफ ग्रैंड डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत पैदर पे ऐसी हरकतें कर रही है, जमहूरियत खत्म हो ही जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत पैदर पे ऐसी हरकतें कर रही है, जमहूरियत खत्म ही हो जाए। इस हुकूमत का हर दूसरे दिन एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। सोलर का एक स्कैंडल है जिस पर तहकीकात होनी चाहिए। हमारे किसी एक वजीर पर करप्शन का केस नहीं है। हमारे दौर में जो कैप्टन सफ्तर से हुआ वो सिंध हुकूमत ने किया। सिंध में 2 सहाफ़ियों का कत्ल हुआ और सियासतदानों पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। सियासी मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला तारड़ की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में कैंट सब कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर्स का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सैयद अली मुर्तज़ा ने ईद उल अज़हा के हवाले से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमे दाखिला पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में आज कैबिनेट सब कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास वज़ीर दाखिला अता ताड़ा की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में ख्वाजा सलमान रफीक, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, एडिशनल आईजी ऑपरेशन, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी, डायरेक्टर आईबी, डिप्टी सेक्रेटरी आईएनसी और डिप्टी सेक्रेटरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी इजलास में शरीक थे। इजलास में सैयद अली मुर्तजा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबा भर में 34,601 मकामात पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम ईदगाहों के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला तातारे का कहना था कि ईद उल अज़हा की नमाज के लिए तमाम शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी तक पंजाब चैरिटी कमीशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, इन्हें DIC NOC लाजमी लेना होगा। NOC के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुर्बानी की खालें जमा नहीं कर सकेगी, जबकि कालेधन तंजीमों की ज़िली तंजीमों पर भी खालें जमा करने पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला ताताड़े का मजीद कहना था कि तमाम शहरी सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से सिक्योरिटी नाफज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। जी, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें। शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने PTI रहनुमा इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस के मतन में कहा गया है कि इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। साबिक गवर्नर सिंध ने सोलर पैनल की खरीदारी से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। लीगल नोटिस में मजीद कहा गया कि लगाए गए इल्ज़ामात में वफाकी काबीना के सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल की तनसीब का फैसला भी शामिल है, जिसका फ़ायदा सलमान शहबाज को पहुँचने का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सलमान शहबाज सोलर पैनल की कंपनी चला रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सलमान शहबाज ने पाकिस्तान को सोलर पैनल मुहैया करने के लिए वाहिदा किया है। इमरान इस्माइल की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। ये तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात शोहरत खराब करने के लिए लगाए गए हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी ज़मानत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी गई। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र हाज़िरी से इस्तिस्ना के लिए दी गई दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेशन अदालत ने शाह फरमान और शहराम तरकई की अबूरी ज़मानत भी 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली है।
गवर्नर पंजाब बलूग रहमान ने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की खाली असामियों का नोटिस देते हुए यूनिवर्सिटियों के इंतजामी महकमों को 6 माह कबल तैनाती का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस हवाले से मुतल्लिका इंतजामी महकमों को मरासला अरसाल कर दिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलूग रहमान ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की खाली असामियों पर तैनाती का अमल तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि वाइस चांसलर की असामियों पर बर वक्त तकर्री जामियात में तालीमी इंतजामी उमूर को मौसर तौर पर चलाने के लिए ज़रूरी है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और MPA हिना परवेज़ भट्ट की सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल ब्रिटिश हाई कमीशन केनरिया एक्सी, सीनियर पॉलिटिकल एडवाइज़र रिदा काजी और ब्रिटिश हाई कमीशन के मोहम्मद तलहा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में बेहतरीन ताउन किया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में सूबा तरक्की कर रहा है। सस्ता आटा और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने से गरीब आदमी को रिलीफ मिला है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, अरकानी कौमी असम्बली मोनस इलाही और हुसैन इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की वफ्द के हमरा मुलाकात। कहा हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया अहद तोड़ दिया। शिकस्त को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने सरकारी वसाइल का रुख ज़िमनी हलकों की तरफ कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत का नोटिस ले और हमजा शहबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि शिकस्त को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने सरकारी वसाइल का रुख ज़िमनी हलकों की तरफ कर दिया है। तरक्याती काम और सरकारी वसाइल का ज़िमनी इंतखाब के हलकों में इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करके हुकूमत पंजाब बदतरीन धांधली की मर्तकब हो रही है। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ का तहरीक इंसाफ की जानिब से बिजली सब्सिडी को चैलेंज करने के हवाले से रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करके इंतहाई काबिल मज़म्मत कदम उठाया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत तबाह की और लूट मार का बाजार गर्म किया। हुकूमत ने यह इक़दाम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए किया। एक किसान, फैक्ट्री वर्कर, मजदूर और दिहाड़ीदार के लिए ये रिलीफ पैकेज इंतहाई ज़रूरी था। गुर्बत आवाम के लिए महीने की कमाई से बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल था। आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद ना आया। इनको तकलीफ हुई कि आम आदमी इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुफ्त बिजली पैकेज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ईवान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत के मुफ्त बिजली पैकेज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खुलूस नीयत से अवाम को मुफ्त बिजली पैकेज दिया। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के तहत बिजली पर रिलीफ दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब के अवाम की दुश्मन जमात होने का सबूत दिया है। ये ईवान तहरीक इंसाफ के अवाम दुश्मन एजेंडे को सख्ती से मुस्तरद करता है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 128 हाफिज मोहम्मद अकरम महर को वर्किंग टीम बराए ज़िमनी इलेक्शन सेंट्रल पंजाब का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन PTI मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मशावरत के बाद एजाज रफ़ी भट्ट ने जारी किया। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद अकरम महर का कहना था कि हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं। PTI सेंट्रल पंजाब की तमाम नशिस्तें जीतेंगे और पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 45,500 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मुशीर वज़ीर आला बराए खेल और सियासत ऑन चौधरी को भी PP 170 में इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर नोटिस जारी किया और 7 जुलाई को वजाहत के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने PP 217 मुल्तान के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद सलमान पर मुतादिद बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 45,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 7 जुलाई तक जमा कराने के अहकाम जारी किए हैं। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ ملک میں مزید بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے عوام بے حد پریشان ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے عوام حکومت پر برس پڑے ہیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ ایسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں حافظ عثمان کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں مزید بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے عوام بے حد پریشان ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں پھر پرانی ریت قائم کر دی گئی۔ دن میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگ گئی۔ جہاں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ بھی مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے ہونے کی وجہ سے عوام حکومت پر برس پڑی۔ عوام کا کہنا تھا کہ ایسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تارا خراب، سب کچھ بہت خراب ہوئے نا حالات حکومت میں۔ میں یقین کرو دلل کیسی ایوان تو پہلے یعنی کہ آ رہے ہیں عمران جان تو بعد یعنی میں کیسی کہ حالات چنگے ہوں گے۔ بس ایک خالی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، اور بہت سے مسائل ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ اے سی یا کولر افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جی وہ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ وہ یار مشکل فیصلے صرف ایک غریب عوام کو نچوڑنے کے لیے کرنے ہیں۔ وجان لوڈ شیڈنگ نے تو قیامت ڈھا دی ہمارے اوپر۔ حافظ عثمان کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں عید پر عوام کو لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر بہتری نظر آئے گی۔ بجلی کا شارٹ فال 4 سے 5 ہزار میگا واٹ ہے۔ تربیلا ڈیم سے 2500 میگا واٹ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے وہ 1100 میگا واٹ بھی سسٹم میں شامل ہوں گے، جس سے مزید لوڈ شیڈنگ میں بہتری متوقع ہے۔ لیکن اس میں آپ کے توسط سے یہ بات عوام کے سامنے لانا ضروری ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے پلانٹس جو گیس پر چل سکتے تھے ان کو دوسرے ایندھن پر چلایا جا رہا ہے، جو کہ اس سے زیادہ، جس کی لاگت زیادہ ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ملک میں بجلی کی جو جتنی انتہائی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ پروڈیوس کی جائے، اور وہ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ بیچ میں کچھ پلانٹس میں عارضی طور پر ضرور خلل آتا ہے، لیکن ہم اس کی چونکہ بہت سخت نگرانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کر رہے ہیں، تو وہ ہم بہت جلدی اس کو ریپیئر بھی کر رہے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ کے سامنے حقیقت رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ اب جو ہم نے کچھ دن پہلے افغانستان سے جو کوئلے کی امپورٹ کا معاملہ تھا اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیر رحمان نے کہا ہے کہ مانسون بارشوں سے اب تک 77 اموات ہو چکی ہیں۔ رواں ہفتے الرٹ جاری کیا تھا، احتیاط کرنی چاہیے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں پاکستان کا 6واں نمبر ہے۔ اس وقت ملک مانسون اور پری مانسون کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ حادثات ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ شیری رحمان نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں 49، بلوچستان میں 274 اور سندھ میں 262% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ 77 اموات ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اداروں کی وارننگ کو سنجیدہ لینے سے اموات کم ہو سکتی ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت پری مانسون چل رہا ہے۔ دوسرے ممالک کے گرین ہاؤسز گیسز کے اثرات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں۔ ملکی آبی ذخائر میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہونے لگی۔ پانی کا مجموعی ذخیرہ 15 لاکھ ایکڑ فٹ سے تجاوز کر گیا۔ عرصہ حکام کے مطابق مانسون بارشوں کے باعث آبی ذخائر میں پانی کی صورتحال میں مزید بہتری کا امکان ہے۔ عرصہ کے مطابق تربیلا، منگلا اور چشمہ میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 15,79,000 ایکڑ فٹ ہے، جبکہ 2 روز قبل تک آبی ذخائر میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 10 لاکھ ایکڑ فٹ تھا۔ تربیلا میں آج پانی کا ذخیرہ 9,56,000 ایکڑ فٹ ہے، منگلا میں 5,86,000 ایکڑ فٹ اور چشمہ میں آج پانی کا ذخیرہ 27,000 ایکڑ فٹ ہے۔ عرصہ حکام کے مطابق تربیلا میں پانی کی آمد 2,58,200 کیوسک اور اخراج 1,50,000 کیوسک ہے۔ منگلا میں پانی کی آمد 45,700 کیوسک اور اخراج 15,000 کیوسک ہے۔
कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कुरंगी, मलीर, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शहर कायद में बारिश के बायस हादसात में भी पेश आए। आजम बस्ती में पानी की मोटर से करंट लगने के बायस एक शख्स जान से गया। मलीर खोखरा पार में घर की बारिश के बायस दीवार गिरने से 14 साल अमान की जान चली गई। कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मेंबर सिंध असम्बली सईद अफरीदी ताहिर मलिक का कहना था कि रेड जोन ज़ेर-ए-आब है तो दीगर इलाकों का हाल क्या होगा। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान में मानसून का स्पेल जो है वो जारी है और ये सिंध हुकूमत जिस तरह से आज रेड जोन में पूरा पानी का तालाब बना हुआ है, लोग कश्तियां लेके सफर करें तो मेरा ख्याल है सफर होगा और ये तो रेड जोन का हाल है। तो इससे ये साबित होता है कि सिंध हुकूमत ने जो नालों की सफाई कराई थी और जो जिस तरह के दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि हमने जो है हर नाले की सफाई करा दी है और आने वाले स्पेल में इंशाल्लाह आवाम को कोई मुश्किलात नहीं होगी, मगर आज इनकी जितनी पोलें थी वो सब खुल गई कारकर्दगी की और एक बात साबित हो गई है कि ये करप्शन के अलावा इनको और किसी आवाम का कोई दर्द नहीं है। ये तो रेड जोन था, ये आप देखें जो अंदरूनी इलाके हैं जिस तरह से सरजानी टाउन हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, मंगो पीर हो गया, बल्दिया हो गया और इसी तरह के जो कच्ची आबादियां हो गई, तो उसमें आवाम जो है वो जिस बदहाली का शिकार होने वाली। इस वक्त में कराची में बिल्कुल ये रेड जोन है। एक तरफ सिंध असम्बली, एक तरफ वज़ीर आला हाउस, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश ने पीपल्स पार्टी की सकती है, ना इससे मोटरसाइकिल गुजर सकती है। तो ये इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है सियासी मुर्तजा वहाब, 10 मिनट की बारिश ने आपके रेड जोन का ये हाल कर दिया, तो आप अंदाजा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों से हलाकतें हुई। छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। मूसलाधार बारिश के सबब सूबे भर में 300 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, जिसके बाद मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए PDMA को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेज़ बारिश के सबब कर्नल अरतम्बू समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। कोहलू समेत शहरों को मिलाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने के सबब सफ़र करना दुश्वार हो गया है। चमन में शदीद बारिशों के सबब पंजाब लौरालाई रोड को बंद कर दिया गया। पानी जमा होने के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। डॉलर का जोर, रुपया कमजोर। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.56 इजाफा हो गया। मुल्की तबादला मार्केट में गुज़िश्ता चंद रोज से रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा था और डॉलर की कदर में कमी आ रही थी। ताहम इंटरबैंक में आज फिर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में मजीद ₹1.56 इजाफे के बाद अमरीकी डॉलर ₹207 पर फरोख्त हो रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने आलमी मार्केट में कम होती कीमतों के पेश नज़र मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी है। PAC इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन नूर आलम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कम हुई है। जब कीमत आलमी मार्केट में कम होती है तो हमारे मुल्क में कम क्यों नहीं होती? जब कीमत आलमी मार्केट में ज़्यादा है इधर बढ़ती है, मगर कम होने के साथ कम नहीं होती। नूर आलम खान ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 2 बार वाज़ेह कमी आ चुकी है, जबकि हुकूमत ने कीमतों में कमी की बजाय इजाफा कर दिया। वजारत खजाना, पेट्रोलियम डिवीजन और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान रेलवे ने ईद के तीनों दिन ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% रियायत का ऐलान कर दिया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ईद कुर्बान के 3 दिन रेलवे मुसाफिरों को किरायों में 30% रियायत मिलेगी।
वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक रेलवे की जानिब से शोबा IT को 10 जुलाई से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जुलाई से 12 जुलाई तक मुसाफिरों को 30% रियायती टिकट फराहम किए जाएंगे। ईद स्पेशल ट्रेनों पर किरायों में रियायत नहीं दी जाएगी। लाहौर से कराची और कराची लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें 10-10 घंटे ताखीर का शिकार होने लगी। मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना है। कराची जाने वाली ट्रेनों की ताखीर की वजह कोहिनूर TV ने मालूम कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राना इशफाक से। राना इशफाक, ट्रेनों की ताखीर की वजह क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की तमाम लाहौर से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। 10-10 घंटे जो है वो ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि कोहिनूर TV ने एक फुटेज हासिल की है, जिसमें पता चला है कि हैदराबाद के करीब जो है पटरियों के नीचे एक शगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हो रही हैं। कराची से आने वाली और लाहौर से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो 10-10 घंटे जो है वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। अगर इसमें मैं बताता चलूं तो लाहौर से जाने वाली किराकरम पार्क बिजनेस, शाह हुसैन, कराची एक्सप्रेस, मियांवाली एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जबकि फैसलाबाद से कराची जाने वाली 18 डॉन खैबर एक्सप्रेस जो है वो ताखीर का शिकार है। जी राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की चेक पोस्टों और सेल पॉइंट्स पर फराहम करदा सर्विसेज के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से इस रिपोर्ट में। आज और 6 जुलाई को जिला लाहौर में मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर 1520 बड़े जानवरों और 4499 छोटे जानवरों और 665 मालबरदार गाड़ियों पर चीचर स्प्रे किया गया, जबकि सेल पॉइंट्स पर 20 से ज्यादा जानवरों का इलाज मुआवजा भी किया गया। अब तक मजमूई तौर पर लाहौर में 20,479 बड़े जानवर, 99,622 बकरों और छकरों, 8,598 जानवरदार गाड़ियां पर चीचर स्प्रे किया गया, जबकि 217 जानवरों को। बहावलपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट नईम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर करने के लिए साफ बहावलपुर के नाम से गूगल ऐप को मुतारिफ करवा दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अंसर बलोच की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट नईम अख्तर ने कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम का जिक्र करते हुए एक गूगल ऐप साफ बहावलपुर को मुतारफ कराया गया, जिसमें तमाम शहरी अपनी शिकायत का अंदराज कर सकेंगे। कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि शहर के तमाम इलाकों को साफ रखना और सफाई के इंतजाम को बेहतर से बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। साथ ही 1139 हेल्पलाइन को भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है, जिसमें हर शहरी अपनी शिकायत का 24 घंटे इंदराज कर सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट नईम अख्तर ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी आज हमने बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और उसको लॉन्च करने का बुनियादी मकसद ईद से पहले ये है कि हर शहरी को ये सहूलत मिल जाए कि वो अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके अगर उसकी सफाई के हवाले से कोई कंप्लेंट है तो वो हमें इन्फॉर्म कर सके। जैसे ही उसकी कंप्लेंट मोबाइल ऐप के ऊपर लॉन्च होगी, उसके फ़ौरन बाद हम उसको सॉल्व करने को और उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना काम शुरू कर देंगे। और इस ऐप के थ्रू हम अपने मैसेज भी उन तक भिजवाएंगे कि आपने अपने शहर में सफाई के मामले में हमसे तावन कैसे करना है, और वो भी हमें फीडबैक देंगे कि क्या हमारा किया हुआ काम उनको पसंद आया या उसमें कोई कमी कोताही रहेगी। तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर अपने। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद एक शख्स की जान ले ली, जबकि 805 नए अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 17,150 टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही, जबकि अब भी 168 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मनासिक हज का आगाज आज से हो गया। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। गुलाफ काबा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने बताया कि इस साल मैदान अरफात मस्जिद निमरा से हज का खुतबा हज अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम के अंदर वबाई अमराज के पेश नज़र जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं और 11 स्मार्ट रोबोट सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। इन जदीद रोबोट्स के अंदर बैक वक्त लोकलाइजेशन और मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आला कारकर्दगी वाले एटमाइजेशन यूनिट और बैटरी चार्जिंग की सहूलत और खुसूसियत मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने 6 माह में 140 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया जा रहा है। रवां साल शहीद होने वालों में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, जिन्हें घरों से निकाल कर तशद्दुद और फायरिंग करके शहीद किया गया। भारतीय अफवाज की जानिब से काले कानून के तहत 854 अफराद को गिरफ्तार और 34 घरों को तबाह किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को चीफ व्हिप की तकर्री महंगी पड़ गई। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद, वज़ीर ख़जाना रशीद सुनक मुस्ताफ़ी हो गए। तरीके अदम एतमाद से बाल बाल बचने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के सितारे एक बार फिर गर्दिश में आ गए। दारुल अवाम में चीफ व्हिप के तकर्रुर पर हुक्मरान टूरी पार्टी में फूट पड़ गई। 2 अहम वज़रा ने ओहदे छोड़ दिए, जिसके बाद बोरिस जॉनसन का इक़्तिदार एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। बोरिस जॉनसन ने दारुल उलूम में क्रिस पेंचर को चीफ व्हिप मुकर्रर किया था। कौमी टीम दौरा श्रीलंका के लिए लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो पहुंच गई। दौरे में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। 16 जुलाई से शुरू होने वाली पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 18 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के 13 अरकान रवाना हुए हैं। कौमी टीम 2015 के बाद पहली मरतबा श्रीलंका का दौरा कर रही है। पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल है। नेमत ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम नजमी ऑर्फन्स प्रोग्राम के बेसहारा यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट स्कॉलरशिप फेस तकसीम किए गए। बेवा और मुस्तहिक औरतों को राशन बैग्स और ईद के कपड़े भी दिए गए। हमजा शाहिद, डॉक्टर आयशा आतिफ, ताहिर लतीफ़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर वाल्टन के इलाका में नेमत ट्रस्ट के ज़ेर तमाम नजमी ऑर्फन्स प्रोग्राम में ज़ेर कफालत यतीम और बेसहारा बच्चों समेत बेवा औरतों के एजाज में ईद उल अज़हा की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर नजमी ऑर्फन्स हमजा शाहिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर आयशा आतिफ, ताहिर लतीफ, आतिफ सईद, मोहम्मद महबूब, फरा अजीज, जवेरिया शफाक, मदिया शफाक, इकरा अब्बास, कामरान रजा भी शरीक हुए। तकरीब में बेसहारा यतीम बच्चों में ईद के तोहफे, स्कॉलरशिप, जबकि बेवा और मुस्तहिक औरतों में राशन बैग और कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब के शुल्का से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहिर लतीफ, नेमत ट्रस्ट का कहना था कि ईद त्यौहार बेसहारा अफराद का भी ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन की शफकत से महरूम बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना हमारा मकसद है। जबकि हमजा शाहिद का मजीद कहना था कि तोहफे मिलने पर बच्चों के चेहरे पर आने वाली खुशी ही ईद की हकीकी खुशी है। आज खुश हूँ सारे नजमी स्टार्स को देख के एक नेमत ने जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उधर सारे बच्चे आए, बहुत खुश थे। मैं देख सकता था कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अभी ईद है और हमें जो वो गिफ्ट मिल रहे हैं। तो नेमत ने हमेशा की तरह जो एक हम प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, इस चीज़ को बरकरार रखा और इस साल भी नजमी स्टार्स के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम जो वो मुनक़िद किया। आज फिर हस्ब रवायत ईद उल अज़हा के मौके पर नेमत ट्रस्ट अपने नजमी स्टार्स के साथ ईद की खुशियों को दुबाला कर रहा है और नेमत ट्रस्ट ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद पर्टिकुलरली यतीमा की कफालत के लिए किया है, क्योंकि यतीम की कफालत एहसास भी है। बहावलपुर मॉडल टाउन ए में लाइब्रेरी गोशा ज़हनी तस्कीन का इफ्तिताह। प्रोफेसर मशहूद हसन रिजवी, इंजीनियर जाहिद हसन, सालिक रहमान और दीगर की शिरकत। मज़ीद जानते हैं उसामा काशिफ की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर मॉडल टाउन ए में फ्री लाइब्रेरी गोशा ज़हनी तस्कीन का इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोफेसर मशहूद हसन रिजवी, इंजीनियर जाहिद हसन, सालिक रहमान और दीगर उमादीन, शहरी और उलमा दोस्त शख्सियात ने शिरकत की। इस लाइब्रेरी से अपने पसंदीदा किताब लेकर पढ़ी जा सकती है। अगर किताब घर ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो बदले में अपनी कोई किताब यहाँ
رکھی جائے تاکہ کتاب کی کمی محسوس نہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار سابق چیئرمین شعبہ ہسٹری اسلامی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد رضوان نے کوہر نور نیوز سے اسپیشل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے اور کتاب سے محبت کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے، کمپین چلائی ہے کہ کتاب چھوٹی سی لائبریری بنائی جائے جہاں مختلف موضوعات پر، ادب پر، سماج پر، مذہب پر، فکشن پہ کتابیں رکھی جائیں، جو کتاب لوگوں میں ترغیب دی جائے کہ وہ یہاں آئیں، کتاب نکالیں، یہاں سے کتاب پڑھیں، اور اگر چاہیں تو یہ کتاب نکال کے اپنے گھر بھی لے جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک کتاب یہاں رکھی جائے تاکہ یہ لائبریری خالی نہ ہو۔ دبئی میں ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی ریلیز ہونے والی فلم کے حوالے سے پریس کانفرنس کا معاملہ، دونوں اداکار صحافیوں کو دیے گئے وقت کے مطابق نہ پہنچ سکے، جس پر صحافیوں نے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ نے نئی ریلیز ہونے والی فلم قائد اعظم زندہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنا تھی، جس کے لیے وہ صحافیوں کے دیے گئے وقت کے مطابق نہ پہنچ سکے اور انہیں 2 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ دونوں اداکاروں کی جانب سے غفلت برتنے پر وہاں موجود صحافی برادری نے شدید افسوس کا اظہار کیا اور پریس کانفرنس کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ مالی سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی کشتی لیبیا کے ساحل پر ڈوب گئی۔ حادثے میں 22 تارکین وطن ہلاک جبکہ 61 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ مالی کی وزارت اوورسیز کے مطابق مرنے والے 22 افراد تارکین وطن کے اس گروپ کا حصہ تھے جو 22 جون سے ایک پریشان کن جہاز پر پھنسے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیموں نے 61 افراد کو زندہ بچا لیا جن کو طبی امداد کے لیے لیبیا کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یو این او رپورٹس کے مطابق نائجر اور مالی سے شمالی افریقہ کی طرف جانے والے تارکین کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کوہینو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینو نیوز۔